See, I'm sharing my screen now. Okay. The question that you had asked was volume of CO2 obtained at STP by complete decomposition of 9.85 grams of Na2CO3. Okay, so Na2CO3 is decomposed. So let me write down that reaction over here. For example, Na2CO3 on decomposition. Okay, it will undergo decomposition. What it is going to form on decomposition? Any idea? Na2CO3 on decomposition. Na2CO2 is Na2O and CO2. Na2O and CO2. So suppose if I write that thing, and CO2. Is the reaction balanced? Yes. Yes, it's Yes. balanced. Okay. So, what is the stoichiometry of Na2CO3 and CO2? See, the coefficient of Na2CO3 is 1 and that of CO2 is also 1. Got Hmm. it? Hmm. It means that if you take 1 mole of Na2CO3, you will get 1 mole of CO2. If you take 5 moles of Na2CO3, you will get 5 moles of CO2. So now you just find the number of moles of Na2CO3. So number of moles of Na2CO3. I'm writing it down over here. Number of moles of Na2CO3 will be given mass over molar mass. Given mass is 9.85. And what is the molar mass of Na2CO3? See, Na's atomic number is 23. So 23 into 2 will be 46. Carbon is 12. So 46 plus 12 is 58. And 58, oxygen is 16. So 16 threes are 48. So what is 58 plus 48? It is 110. So do this on a calci and tell me what you are getting. 9.85 divided by 110. How much you are getting? 0.089. 0.089. Okay. Okay. So this is the number of moles of Na2CO3. So can I say that number of moles of CO2 will also be 0.089 because the ratio is 1:1? Okay. Now, do you know that if I take 1 mole, the volume is 22.4 liters. Okay. So 0.09 moles. 0.089, sorry, my mistake. 0.089 moles is equal to how many liters? So the value of X will be how much? 22.4 into 0.089. What answer you are getting? X is equal to what? कैल्सी में करो और बताइए क्या आ रहा है आंसर. 1.9. 1.9. 1.9936. हाँ, तो उसको राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं? 2.24 लिखोगे ना राउंड ऑफ करके?
आंसर 2.24 आ जाएगा। समझा ये आपको मैडम? But in the book, and even I got that, but it says in the book it's zero. जीरो? Hmm. एक मिनट, एक मिनट, कैलकुलेटर में मैं, सी इफ यू डू मोलार मास ऑफ Na2CO3 110 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले वो देखना पड़ेगा हमें। लाइक 46 प्लस कार्बन इज 12 प्लस 48। हाँ, ये 106 है मैडम। ये 106, दिस इज नॉट 106 है ये। बट ठीक है, तो लगभग आंसर, अप्रोक्सीमेटली आंसर है ना 2 के आसपास आएगा, 2 लीटर्स। इफ द आंसर इज 2 लीटर्स, तो आप क्लोजेस्ट आंसर क्या मार्क करोगे? 2.24. हाँ, 2.24। आंसर जीरो दिया है क्या? हाँ. नहीं नहीं, इट इज द इनकरेक्ट आंसर, दिस दिस इज द राइट आंसर। ओके, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ओके, so equivalent weight, do you know the formula for equivalent weight? It is like equivalent weight का formula होता है Atomic weight, मोलार molar mass अपॉन upon. n फैक्टर होता है, ठीक है। द n फैक्टर फॉर ऑक्सैलिक एसिड इज 2, तो इक्विवेलेंट वेट विल बी, देखो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है H2C2O4। इसका मोलार मास ढूंढो, H2 मतलब 2, C2 मतलब 12 इंटू 2 24, 24 26, and 16 fours are 64, 64, 26 will be 100। ओके, एक मिनट, बराबर ही हो रहा है ना, देखो जरा। H2 विल बी, रुको कैलकुलेटर पे मैं देख लेता हूँ, विल बी 2 + 24, 2 + 24 + 64। ओके। ये 100 नहीं होगा, 90 होता है। इट्स लाइक मोलार मास ऑफ H2C2O4 कैसे ढूंढोगे आप? हाइड्रोजन का मास 2 होता है, ऑक्सीजन का 12, तो 12 इंटू 2 विल बी 24, एंड देन 64। तो इट विल बी 90, तो 90/2 करना है, तो 90/2 विल बी 45। तो 45 दिया है ना उन्होंने आंसर में। समझा ये? व्हाट आंसर दे हैव गिवन मैडम? They given 63. 63 दिया है? Hmm. अच्छा हाँ, तो ये, एक मिनट, वो फिर 2H2O6 90 प्लस, रुको एक मिनट, कैलकुलेटर में 90 + 36। हाँ, तो ये ऑक्सैलिक एसिड जो है, वही मुझे लगा था कि ये इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता ही है। ऑक्सैलिक एसिड जो है ना, उसका आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कंसिडर करना पड़ेगा, तो फिर इट इज H2C2O4 2H2O, ऐसा रहता है। Hmm. तो अब इसका मास देखोगे ना, तो 126 हो जाएगा, क्योंकि 90 तो वैसे ही आ रहा था, एंड H2O का मास 18 होता है, एंड 2 molecules ऑफ वाटर इज 36 ग्राम्स। तो Hmm. 90 + 36 विल बी 126। तो योर
126/2, which will be 63 grams. अब क्लियर हुआ? यस। ओके। अब फिर देखो और एक क्वेश्चन था। 21st, वो व्हेन 100 ml वाला जो दिया है उन्होंने, ठीक है। See, when 100 ml of M by 10 H2SO4 is mixed with 500 ml of M by 10 NaOH, then the resulting nature of resulting mixture. देखो, फाइनल नॉर्मेलिटी ऑन मिक्सिंग का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मेलिटी ऑन मिक्सिंग, इट इज गिवन बाय N1V1 minus N2V2 divided by V1 plus V2, ऐसा रहता है, ठीक है। तो अब आपको सिर्फ ये चेक करना है कि किसके ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा होंगे। ओके। तो H2SO4 का एन फैक्टर क्या होता है? 2 होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंस, रुको एक मिनट, 100 × 250/25। हम्म हाँ, तो नॉर्मेलिटी ऑन मिक्सिंग विल बी NaOH के ग्राम इक्विवेलेंस विल बी, मोलारिटी कितना है उसका, NaOH का ले रहा हूँ, ठीक है। NaOH का मोलारिटी 1/10 है। M/10 मतलब 1/10 होता है। उसका एन फैक्टर 1 होता है, ठीक है। और वॉल्यूम कितना है? 500 ml। ये माइनस करेंगे। H2SO4 का नॉर्मेलिटी, सॉरी, मोलारिटी 1/10 है। उसका एन फैक्टर 2 होता है पर, और उसका वॉल्यूम 100 है। ऐसा रहेगा। ऐसा है। और V1 + V2 है। तो V1 कितना है? 500। V2 कितना है? 100। तो नॉर्मेलिटी ऑन मिक्सिंग क्या होगा? ये देखो, ये इसको सॉल्व करो, ये कितना होगा? 500/10 कितना होता है? 50, माइनस 200/10 कितना होगा? 20 होगा मैडम। और ये 500 + 100 कितना होगा? 600 होगा। तो ये होगा 30/600। 30/600 होगा, तो ये 0 0 गया। ये एक 0 गया। तो 3/60 विल बी 1/20। 1/20 होगा ना? तो 1/20 मतलब M/20 हुआ, और ये बेसिक हुआ। बेसिक क्यों होगा? क्योंकि ये बेस के ग्राम इक्विवेलेंस है, ज्यादा है, और ये एसिड के है। तो बेस इज मोर डोमिनेटिंग देन एसिड, दैट मीन्स द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। आर यू गेटिंग इट मैडम? यस सर। ओके। देन there was one more question. The frequency of the wave is 6 into 10 raised to 15. The wave number you want to know. ठीक है, I'm writing it down over here. See, wave number is the reciprocal of frequency, reciprocal of wavelength. Okay. So पहले तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, V is equal to n lambda, where V is what? Velocity, n is frequency, and lambda is wavelength. So now you want to find this. Okay.
यू वांट टू फाइंड, सी, लैम्डा को मैं नीचे लेकर जा रहा हूँ, यहाँ पे 1/λ इज इक्वल टू n/v लिख दूंगा मैं। n इज फ्रीक्वेंसी, ओके, एंड 1/λ को ही हम वेव नंबर बोलते हैं, v बार बोलते हैं उसको। वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ होता है, पता है ना, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, एंड नहीं नहीं, ये मेरा मिस्टेक हुआ। वेलोसिटी ऑफ लाइट तो डिनोमिनेटर में आएगा, एन इज द फ्रीक्वेंसी जो उन्होंने दिया है, तो 6 × 10⁻15 होगा ये, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸। तो क्या होगा ये, यू विल गेट द वेव नंबर सी। फिर 6/3 क्या होगा, 2 होगा, और 2 इंटू क्या होगा, 7, 2 × 7 हो जाएगा ये। और यूनिट क्या होगा, मीटर्स पर सेकंड में है ये, तो ये हो जाएगा पर मीटर, ऐसा। समझा ये मैडम? इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ, ये फॉर्मूला में मैंने क्या क्या यूज किया है। देखो यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ आपको, यहाँ पे जो हम v ले रहे हैं ना, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। वेलोसिटी ऑफ द लाइट, ओके, जो n है यहाँ पे, दैट इज फ्रीक्वेंसी। और जो लैम्डा है, वो है वेवलेंथ, ठीक है। और जो v बार है, v बार जो है, उसको हम वेव नंबर बोलेंगे, जो उन्होंने पूछा है। समझा मैडम? ओके, so just copy down this thing. Then they are asking you if the threshold wavelength for ejection is 330 nanometers. Then work function of the photoelectric, वर्क फंक्शन पूछा है, तो आपको वर्क फंक्शन का है ना फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि वर्क फंक्शन इज W0, ओके, तो इट इज H into mu naught, where H is Planck's constant and mu naught is threshold frequency, but they are not giving you threshold frequency, so you will use hc/λ. C is called velocity of light, so either the velocity of light is v or it can be c, anything, ठीक है। तो यहाँ से वर्क फंक्शन मिल जाएगा आपको, तो मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ पूरा। W0 h into c, what is the value of h, you know what is the value of h, Planck's constant? It is 6.626 into 10 raised to minus 34 into 3 into 10 raised to 8। वेवलेंथ कितना है, 330, 1 नैनोमीटर इज 10 रेज टू माइनस 9 मीटर्स, बराबर। हम्म। हाँ, बस अभी इसको सॉल्व करो ना मैडम, क्या आ रहा है, देखो मैं मदद करता हूँ। 6.6 इंटू 3 करेंगे तो कितना आता है, कैल्सी में बताओ ना, 6.6, 6.626 इंटू 3 करो, देखो मैं करता हूँ, 6.626 इंटू 3, तो मैं 19.8। हाँ, अगर 2 डिजिट्स ले तो 19.89 आएगा, बराबर। नहीं, 19.88 होगा।
अब ये देखो, 10⁻⁻34 और 10⁻8, ये कितना होगा? -34 +8 मतलब 10⁻⁻26 होगा, है ना? अपॉन 330। 330 को मैं ऐसे लिखूंगा, 33 इंटू 10⁻⁻8। अब ये करो, 10⁻⁻26 अपॉन 10⁻⁻8 कितना होगा बताओ? -26 + 8। हाँ, -26 + 8 कितना होता है? 18 होता है। हाँ। 10⁻⁻18 होगा। -8। ये 3.88 अपॉन 33, बराबर ही है। अगर आप आंसर्स देखो तो सब 6 पॉइंट उसमें दे दिया है। अब इसको है ना, थोड़ा मैं मैनिपुलेट करके क्या लिखूंगा, सी व्हाट आई एम राइटिंग। आई हैव टू लुक एट द ऑप्शंस ऑल्सो एंड देन आई विल डू सम मैनिपुलेशन। इसको मैं 10⁻⁻18 लिख दूं। 33 को है ना, मैं 3.3 लिखूंगा और 10⁻1 लिखूंगा, लिख सकता हूं मैं, है ना? और अब क्या होगा, W0 = 19.88 अपॉन 3.3 करो, देखो आंसर 6 होगा। ये 10⁻1 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 10⁻1, सो दिस विल बी 10⁻19 जूल्स। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। समझाइए? यस सर। ओके। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। फिर एक 23rd क्वेश्चन आपने मुझे पूछा था डी ब्रूगली वेवलेंथ के बारे में। डी ब्रूगली वेवलेंथ, जो डी ब्रूगली वेवलेंथ होता है वो होता है H/mv। तो H का वैल्यू जो है वो हमें निकालना है। H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन व्हाट इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.11 इंटू 10⁻31 kg। और वेलोसिटी कितना होता है? 3 × 10⁸ होता है। तो वेवलेंथ कितना होगा, ये देखो। ये अभी फटफट कैलसी में मुझे करके बताओ आप। मैं जो बोलूंगा ना वो आप कैलकुलेटर में बताओ करके। 9.11 इंटू 3 करो। 27.33। हाँ, अब ये देखो 31, 10⁻⁻31 और 8 +8। या तो पहले ये देखो, ये देखो, ये -34 है, ये -31 है। तो न्यूमरेटर में कितना बचेगा? 10⁻³ बचेगा। 10⁻³ बचेगा। इसको घुमा दो, ये नहीं है। 10⁻³ बचेगा और ये 10⁸ है। ओके। तो अब इसको सॉल्व करो। ऊपर जाएगा तो 10⁻11 हो जाएगा ये। 10⁻11, ये है 6.626 अपॉन 27.33। ठीक है। अब ये देखो वेवलेंथ, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, 66.26 अपॉन 27.3। ये सॉल्व करो और बताओ। और इसको मैं 10⁻12 लिख दूंगा।
बताओ आंसर क्या आ रहा है। uh, 2 हम्म। 6 divided by 27 2 point ये, two हाँ, seven 2.42 है ना। हाँ, 2.42 इंटू 10⁻⁻12 ये मीटर्स में आएगा। बट 1 मीटर इज हाउ मच पिकोमीटर्स? 10⁻12। इन शॉर्ट ये पिकोमीटर में 2.42 पिकोमीटर्स होगा। So this will be your answer. Hmm. Yes, sir. Copy down this thing. समझा ये? बट शायद मैंने कुछ गड़बड़ किया है यहाँ पे। जो वेलोसिटी है, रुको, वेलोसिटी 3 × 10⁸ नहीं लेना था, वेलोसिटी 10% लेना था। सो 10% ऑफ 3 × 10⁸ करना है। मैंने वो 10% नहीं लिया, तो ये एक एक जीरो कट हो गया। तो ये कितना होगा? 3 × 10⁻⁷ लेना था। Yes. हाँ, तो ये 3 × 10⁻⁷ है ना, तो मैं क्या करूंगा पता है, इसको 10⁻⁻1 से हर जगह मल्टीप्लाई कर दूंगा। 10⁻⁻1, ये 10⁻⁻11, तो ये 242 पिकोमीटर्स होगा। देखो आंसर क्या है। क्यों थी? आंसर क्या दिया है उन्होंने? ये 242 पिकोमीटर्स रहेगा, नॉट 2.4। ठीक है, समझा ये? डिड यू गेट दिस मैडम? Yes, sir, I got it. ओके। अब और कोई डाउट है क्या? नहीं ना? No, sir. ओके। ओके। सो एक मिनट। सो डिड वी डू द कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड? डिड वी डू द कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड? Hydrogen bond from the bonding chapter, right? हमने लास्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी किया होगा। हाँ, yes, sir. Yeah, we did. ओके, एक मिनट। So now we have to study about hydrogen bond. Okay, this is the topic which is very easy. We have to study about H bond. Okay, just pause for 1 minute, मैडम, और मैं पानी पी कर आता हूँ।
चलो, एच बॉन्ड जो है, डू यू नो व्हाट इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड मैडम? देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड तब होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, it is formed when in a covalent compound hydrogen goes and forms a bond with a more electronegative atom, and that more electronegative atom is mostly fluorine, oxygen and nitrogen. फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, सॉरी, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन पार्शियल बॉन्ड बनाता है। ऐसा क्लियर हुआ ये? Yes, sir. देन रिमेंबर दिस, इट इज अ वीक बॉन्ड, और उसका जो बॉन्ड एंथैल्पी होता है वो होता है 8 to 42 किलो जूल्स पर मोल। किलो जूल्स पर मोल होता है ये। फिर इसमें दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो लेट्स स्टैंड मोर इन डिटेल अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। ओके, सो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब इट इज फॉर्म between two molecules. Okay, so what are the examples of intermolecular hydrogen bond? तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। पहला जो एग्जाम्पल है वो है एच एफ। ये देखो एच एफ, ये एच एफ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। देखो ऐसा, ऐसा। दूसरा, आप सिर्फ ये याद रखो कि हाइड्रोजन बॉन्ड में है ना, ऐसा रहता है। सी देर इज एन एटम ए, ओके, देन हाइड्रोजन एंड देन एटम बी। से यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड है और फिर यहाँ पे एक पार्शियल बॉन्ड है। तो ए और बी दोनों जो होते हैं, दिस ए एंड बी हैज टू बी मोस्टली फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड और नाइट्रोजन। in certain cases carbon and chlorine also form hydrogen bonds, but most of the times it is what, most of the times it is what, fluorine, oxygen and nitrogen। ठीक है, समझाइए। तो ये पहला एग्जांपल था एच एफ। फिर दूसरा एग्जांपल क्या है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में? वाटर। टेक वाटर मॉलिक्यूल, मान लो ये वाटर है, so it will form a hydrogen bond like this with water molecule, ऐसा। this is in liquid form, this is in liquid form। ओके, ये रहा, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड, ये रहा पार्शियल बॉन्ड। समझा ये? सारे एग्जांपल्स याद रखने। एच एफ में इंटरमॉलिक्यूलर होता है, H2O में होता है, देन अल्कोहल्स में भी तो होता है, ROH अल्कोहल होता है, फिर ये ऐसा।
1 मिनट। और वाटर के साथ ले लो, वाटर और अल्कोहल ऐसा। सो दे ऑल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स लाइक दिस। बराबर है मैडम? आर यू क्लियर विद दिस? Yes, sir. ओके। तो ये HF में होता है, H2O में होता है, अल्कोहल्स, अमाइंस। ओके, एंड देन इसमें भी होता है, देखो ये वाला कंपाउंड में, अगर हम ये वाला कंपाउंड ले ले, पैरानाइट्रोफिनॉल में, देखो पैरानाइट्रोफिनॉल में ऐसा रहेगा, यहाँ पे O रहेगा एंड डबल बॉन्ड O ऐसा। तो जो पैरानाइट्रोफिनॉल होता है ना, उसमें भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ये देखो ऐसा रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा। यहाँ पे N पे यू विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे यू विल हैव अ नेगेटिव चार्ज। इसको हम बोलेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्लियर हुआ ये? तो राइट इट डाउन प्लीज, ऑल दिस एग्जांपल्स। ये सब एग्जांपल्स आना चाहिए आप लोगों को। आर यू डन राइटिंग ऑल दिस एग्जांपल्स? मैडम यू आर डन ऑल दिस राइटिंग? Yes, sir. ओके। तो दिस इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।